मैं पढ़ता हूँ, चलो, है ना। ओ। हम्म। 2.16 भगवत गीता। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्व अन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। न सतो विद्यते भावो, भावो न भावो भावो विद्यते विद्यते सतः, सतः। उभयोरपि उभयोरपि दृष्टो दृष्टोऽन्तस्तत्त्वान्योस्तत्त्वदर्शिभिः। अन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। Those who are seers of the truth have concluded that of the non-existence existent, the material body, there is no endurance, and of the eternal, the soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. Purport: there is no endurance of the changing body. That the body is changing every moment by the actions and reactions of the different cells is admitted by the modern medical science, and thus growth and old age are taking place in the body. But the spirit soul exists permanently, remaining the same despite all changes of the body and the mind. That is the difference between matter and spirit. By nature, the body is ever changing and the soul is eternal. This conclusion is established by all classes of seers of truth, both impersonalists and personalists. In the Vishnu Puran 2.12.38, it is stated that Vishnu and his abodes all have self illuminated spiritual existence. Jyoti Mishi Vishnur Bhuva Nani Vishnu. The words existent and non-existent refer only to the spirit and matter. That is the version of all seers of truth. This is the beginning of the instructions by the Lord to the living entities who are bewildered by the influence of ignorance. Removal of ignorance involves the re-establishment of the eternal relationship between the worshipper and the worshipable, and the consequent understanding of the difference between the part and parcel living entities and the Supreme Personality of Godhead. One can understand the nature of the Supreme by thorough study of oneself. The difference between oneself and the Supreme being understood as the relationship between the part and the whole. In the Vedanta Sutra as well as in the Srimad Bhagavatam, Supreme has been accepted as the origin of all emanations. Such emanations are experienced by the superior and inferior natural sequences. The living entities belong to the superior nature, as it will be revealed in the seventh chapter. Although there is no difference between the energy and energetic, the energetic is accepted as the supreme, and the energy or the nature is accepted as the subordinate. The living entities, therefore, are always subordinate to the Supreme Lord, as in the case of the master and the servant, or the teacher and the taught. Such clear knowledge is impossible to understand under the spell of ignorance. And to drive away such ignorance, the Lord teaches Bhagavad Gita for the enlightenment of all living entities for all times. इस श्लोक में भी भगवान यही बता रहे हैं कि सोल परमानेंट है और बॉडी पेरिशेबल है, इम्परमानेंट है, टेम्परेरी। बॉडी चेंज होती रहती है। पिछले श्लोक में बताया उन्होंने, देहो इसमें यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि बॉडी में चेंज होते रहते हैं, लेकिन सोल के अंदर में कोई डिफरेंस नहीं होता। बच्चे की सोल, जवान लड़के की सोल, बूढ़े आदमी की सोल में कोई चेंज नहीं होता। दैट इज इटर्नल एंड नॉट चेंजिंग। एंड बॉडी जो है वो इट कॉन्स्टेंटली गोज अंडर चेंज। वो मेडिकल साइंस ने भी, जैसा वो बार बार कह रहे हैं, स्टैब्लिश कर दिया एवरी 7 years तो बॉडी चेंजेस, है ना।
हाँ, बट आप ये उसको थोड़ा सा और एक स्टेप आगे लेके जाओ कि मतलब इट वुड रियली अमेजिंग कि आपकी बॉडी में 7 years में ईच एंड एवरी सेल will go through मतलब rejuvenation. It will die and a new one will be created. Yet the the soul is still there. What I'm saying is कि भाई अगर soul नहीं होता तो भाई what is keeping it together? What is keeping the body together? Otherwise मतलब you see, I mean, the सोल living सोल force, की वजह से ही बॉडी है। right? बॉडी इज एक्वायर्ड बाय द सोल। देखो सोल जो है, जब वो एंटर करती है ना, जब आदमी और औरत के क्रम है, मतलब वो जब वो होता है, तो अब सोल की वजह से ही वो बॉडी पहले वूम में ग्रो करती है, फिर बाहर निकल के ग्रो करती है। जैसे ही वो सोल निकल जाएगी, वो बॉडी जो है मैटर बन जाएगी तुरंत। मैटर वो तब भी है, मैटर जब बॉडी, बट उसको क्या नाम है, मतलब सोल कीप्स इट एनर्जाइज्ड। सोल कीप्स इट एनर्जाइज्ड। और ये वाला जो फैक्ट है कि बॉडी में, बॉडी कॉन्स्टेंटली अंडरगोज चेंज एंड सोल अंडरगोज नो चेंज, उसको हर तरह के सीयर्स ने एस्टेब्लिश कर दिया है। वो यहाँ पर वो इसी को प्रभुपाद कह रहे हैं कि इवन मायावादी भी ये बात मानते हैं। एक्चुअली इससे पर्सनलिस्ट एक एंड और बड़ा, impersonalist, all types of seers have determined this। इससे एक और भी चीज निकल के आती है, देन यू नीड नॉट फियर डेथ. वो तो है, भाई वो when तो you really, है। if you really become, you the more you realize this, the eternality of the soul, then you will not be concerned with death. Like you will not be fearing death. You will not be, you will be more accepting of it. Yes, the body छोड़ रहे हैं, यही body को चीज छोड़ने वो जो लगा. है लॉर्ड समझाने की अर्जुन को कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम इस बात से मतलब परेशान मत हो कि तुम घबराओ यू नहीं. विल बी यू विल बी किलिंग देम, दे विल बी Yes. गॉन एंड ऑल दैट, बिकॉज उनकी कोई मृत्यु नहीं होती, तो शरीर मरता है। यही वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये। और वो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि कहना मैं डर फिर लगना ही नहीं चाहिए। डर मालूम है क्यों लगता है, मैं भी जहां तक समझता हूँ, बिकॉज ऑफ और आवर अटैचमेंट टू दिस बॉडी एंड सेंस एंजॉयमेंट। जो हम Yes. लोग सेंस एंजॉयमेंट की इस शरीर के साथ आदत पड़ गई है ना, दैट मेक्स अस फियरफुल कि यार ये चला जाएगा तो फिर मैं अब कैसे अच्छा खाना एंजॉय कर पाऊंगा। अच्छा क्या मैं मतलब मेरा जो पूरा घर परिवार है उसके साथ आई एम फीलिंग सो गुड, सो हैप्पी है बिल्कुल. उनके दैट साथ कंफर्ट, में। हाँ मतलब वो चला बॉडीली जाएगा, कंफर्ट. वो चला जाएगा, इस वजह से परेशान होता है। इस वजह मोस्ट पहली बात तो उसको सोल वगैरह की नॉलेज ही नहीं है, बट क्योंकि वो लोगों को मरते हुए देखता रहता है ना, है तो है नहीं उसको ये तो पता है कि क्या नाम है मरना तो मतलब पड़ेगा। एवरीबडी इज डाइंग, माई फादर डाइड, माई मदर डाइड, तो आई विल ऑल्सो डाई इवेंचुअली। उसी को भय क्यों होता है? अगर अगर आप सेल्फ रियलाइज हो जाओगे तब आपको डर, क्योंकि फिर मौत और जीवन में कोई फर्क ही नहीं है, बल्कि आप इसी जीवन में सेल्फ रियलाइज हो जाओगे तब। तो तभी तो उन्होंने कहा कि देहो स्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यते। देहांतर प्राप्ति, देहांतर प्राप्ति, देहांत का मतलब ये कि देह का अंत, देह का अंत हो रहा है, प्राप्तिर देह का अंत हो रहा है। देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यते। जो धीर है उनको क्या नाम है कोई फर्क नहीं पड़ता। धीर वर्ड को भी बड़ा प्रभुपाद ने उसको समझाने की कोशिश की कि धीर कौन है उसको। हम्म. ये जो है ना, ये जो ये जो लिमिट कर रहा है ये अर्जुन की, भाई ये ठीक है, तुम्हारी बात सही है। ये ये जो है बॉडी ही है, बट उसको बॉडी से भी अटैचमेंट है उनकी, की बॉडी से भी अटैचमेंट है। तब वो वही बता रहे हैं हम्म. कि भाई राइट. बॉडी का इसमें भी भी ये, हम्म। हाँ, को है, फिनिश होता है. नहीं नहीं, वो मतलब कि तभी उन्होंने ये वाला बताया ना कि क्या नाम है, बॉडी तो टेम्परेरी है, सब बॉडी से क्या नाम है अटैचमेंट करना बेकार की चीज है।
बॉडी जो है टेम्पररी है, उनको कुछ नहीं होगा 20, बल्कि उन्होंने ये भी समझा है कि यू विल बी डूइंग देम देम ए फेवर, क्योंकि उन लोगों ने तो मतलब वो लोग तो पायस एक्टिविटीज करी है सारे जीवन में, ठीक है वो लड़ रहे हैं अभी इस समय दुर्योधन की तरफ से, बट दे विल गेट अपर प्लैनेट्स, सो यू विल बी डूइंग देम ए फेवर बाय shortening their existence and you and letting them have a better body। तो ये वो समझाने, हाँ। ये वाला ये वाला सेंटेंस इसमें बड़ा अच्छा है परपोर्ट में। वन कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सुप्रीम बाय थरो स्टडी ऑफ वन सेल्फ, द डिफरेंस बिटवीन वन सेल्फ एंड द सुप्रीम बीइंग अंडरस्टूड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट एंड द होल। ये मेरे को इनका शिला प्रभुपाद का बड़ा अच्छा लगा था कि भाई, if you start looking at your qualities, and Lord Krishna has said all the ability in man is him, then by knowing your qualities or qualities of man, you can know the qualities of the supreme, भाई and देखो मेरे that को is a तो way of knowing. वो वाला बड़ा इंस्ट्रक्टिव लगता है ना कि आप, अगर आप अपने आप को समझ जाए ना तो आपको सारी सुप्रीम का चीजें नाम क्लियर हो है। जाए, क्यों कैसे? फिर आपको अगर अपने आप, तो आपको पता चल जाएगा भाई आपकी आत्मा और परमात्मा दोनों है आपके अंदर, मतलब उसको Right. उन्होंने एनालॉजी दिया बर्ड की, कि दो बर्ड है। तो अब आपकी आत्मा जो है बिकॉज ऑफ बिविल्डरमेंट एंड कंडीशनिंग, वो जो है फ्रूटिटिव एक्टिविटीज में लगी हुई है, तो Right. वो कार्मिक रिएक्शन झेल रही है बिकॉज ऑफ दैट। बट परमात्मा जो है वो उसका साथ तब भी नहीं छोड़ रहे हैं, कार्मिक रिएक्शंस की वजह से उसको बॉडी आफ्टर बॉडी मिल जाती है। एक बार वो ये फ्रूटिटिव एक्टिविटीज छोड़ के, मतलब सकाम कर्म छोड़ करके, अब वो निष्काम कर्म परमात्मा के लिए करने लग जाए, दूसरे बर्ड के लिए कर्म, और उसको ये रिलेशनशिप समझ में आ जाए। यही वो मेरे ख्याल बता रहे हैं यहाँ पे, Yes. हम लोग क्योंकि पढ़ चुके हैं ना। तो Right. एक बार उसको ये जब समझ में आ जाएगा कि भाई मेरा, मेरी मतलब जो मेरी नेचुरल जो सिचुएशन है वो एज ए सर्विटर है, तो फिर क्या नाम है, देन ही विल स्टार्ट, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटीज वही है, तो भगवान उसको फिर वही। एम्पावर करेंगे। उसको किस लेवल तक एम्पावर करेंगे, वी हैव नो आइडिया We have कि no idea. अपने भक्त को किस लेवल तक वो एम्पावर करेंगे। प्रभुपाद को देखो उन्होंने कितना एम्पावर किया, Yes. जगत गुरु। तो क्या नाम है कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया भगवान, किसी को पहुंचा सकता है ना। तो ये है, तो आई थिंक Yes. मैं इसके अंदर में जो मेन चीज जो है कि बॉडी और सोल की परमानेंसी और नॉन परमानेंसी के बारे में बड़ा अच्छा बताया है। ना सते Yes. विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, और ऐसा जो है सभी लोगों ने कंक्लूड करा है, ठीक है। इसमें लेकिन सबसे बड़ा एक चैलेंज यही आता है कि अभी जो हमारी कॉन्शियसनेस है, इट इज फुल्ली फिक्सेटेड ऑन बॉडी। तो इसलिए नॉन एग्जिस्टेंस बॉडी, दैट इज व्हाई इट इज नॉट धीर, दैट इज व्हाई इट इज ऑल द टाइम फुल ऑफ एंजाइटी। अब हाउ ये टू गेट टू द ये ये क्या नाम द है, इट इज ट्रू बिकॉज ऑफ, ट्रू पोजीशन ऑफ सोल, कि भाई कि भाई द कॉन्शियसनेस जो है वो सोल के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करे, एंड दैट इज व्हाट भक्ति एंड डिवोशनल सर्विस इज अबाउट, दैट इज द इट वे इज क्या टू नाम है, इट इज बेसिकली बिकॉज आवर प्रोपेंसिटी ऑफ सेंस एंजॉयमेंट। इसीलिए देखो ना भगवत गीता में और आगे भी हमेशा हर वो जो है माइंड एंड सेंस कंट्रोल के ऊपर कितना जोर दिया, क्योंकि रन अवे माइंड एंड रन अवे सेंसेस, यानी घोड़े का रूप दिखाया है उनको, चार पांच घोड़े हैं। अब वो अगर सब इधर उधर उनकी लगाम क्या है, वो जो है वो माइंड है, माइंड और लेकिन वो इसमें एक और चीज मुझे इंटेलिजेंस। बड़ा अच्छा लगा कल, जो ना इसी को एक स्टेप आगे बढ़ाएं, कि शीला प्रभुपाद वाज आंसरिंग वेरी नाइसली उसमें लेक्चर में, कि ये क्यों जरूरी है, व्हाई शुड यू कंट्रोल योर माइंड एंड सेंसेस। फिर उन्होंने बताया कि भाई देन यू विल गेट ए हायर प्लेजर, यू विल गेट ए हायर टेस्ट, यू विल गेट ए मच मच मोर ब्लिसफुल व्हेन आप इसको यू स्टार्ट डायरेक्टिंग इट टुवर्ड्स द लॉर्ड, ये सारे माइंड को भी एंड सेंसेस को भी। सी क्या है, अदरवाइज, अदरवाइज
बॉडी से तो आपको प्लेजर मिल ही रहा है, बट वो बहुत ही ग्रॉस है। इट इज नॉट एंड्योरिंग, इट इज हैज लॉट ऑफ पेन एसोसिएटेड। बट अगर आप माइंड एंड सेंसेस को भगवान की तरफ भाई अब पता लगाएंगे, नहीं विच इज वेदर द इटर्नल। इट इज स्पेकुलेशन और व्हाट, बट हमारी स्पिरिट की भी एक बॉडी है, या स्पिरिट ऑल्सो हैज, हाउएवर में, तो इसका मतलब उसके उसके पास मतलब ट्रांसीडेंटल सेंसेस भी हैं। यस वंस वी यस गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल सेंसेस, यस then यस can I I think those transcendental senses of the यस soul they become active। जब आप एक्टिव, यस तब उस प्लेजर का, उस सेंस प्लेजर का, ट्रांसीडेंटल यस। सेंस प्लेजर का हमें आइडिया ही नहीं। ये वो कभी कभी बहुत, ये यहाँ पे डिवोशनल सर्विस जो आप कहते हो ना, और वो भी बहुत ही मीनियल वाली जो डिवोशनल सर्विस करके उसका एहसास होता है। हाँ बिल्कुल बस होता बस है। वो मैंने बताया ना तुमको, यस। यस। जैसे मतलब बर्तन धोना, झाड़ू पोछा लगाना या टेम्पल करें में, मैं मतलब then अपने गुरु, आपको गुरु का टॉयलेट वगैरह गुरु साफ का। करना, यस। यस। वो सब चीजें जो है देन वो यू को गेट दैट। हरी शौरी वगैरह ने पता नहीं किसने बताया भी है। तो यस। बट ये आपने बहुत अच्छा बताया, ये शीला प्रभुपाद ऑल्सो कीप्स मेंशनिंग कि भाई व्हेन योर यू विल गेट दोस ट्रांसेंडेंटल सेंसेस। अभी आपकी सेंसेस, सोल भी मटेरियली कंटेमिनेटेड है, सेंसेस भी मटेरियली कंटेमिनेटेड है। बट डिवोशनल सर्विस से जब वो मटेरियल कंटेमिनेशन, गुणों का प्रभाव उन दोनों पे खत्म हो जाएगा, सेंसेस पे भी एंड माइंड पे भी एंड सोल पे भी, देन यू विल गेट दैट ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। ये जो है ना मतलब ये धीरे धीरे ये सब चीजें समझ में आएगी भाई। अब हमारे पास तो ये प्रभुपाद की किताबें ही हैं, गुरु हैं। अब ये चीज जो है ना, अरे लोगों को भाई नारद मुनि से पूछना पड़ रहा है, सुखदेव गोस्वामी से पूछना पड़ रहा है, शौनक ऋषि सूता गोस्वामी से पूछ रहे हैं, तो हम लोग क्या हैं यार, कुछ नहीं। यस। वी डोंट हैव नाइदर नारद मुनि नॉर कैन आई सूता गोस्वामी, है कि नहीं? प्रभुपाद भी नहीं है हाँ अब। बट, हाँ बट वही तो लॉर्ड कृष्णा लेकिन चैतन्य, आप, चैतन्य हाँ, गुरु के फॉर्म में हम लोगों के हार्ट में है, एंड ही हैज ये डायरेक्टेड अस ये ये टू लास्ट थ्री अरे इयर्स भाई अगर आप प्रभुपाद को ही क्या नाम है अपना गुरु मान के भी चलते रहो तब भी आप, यस यू विल बी देयर। यस ओके, ठीक है। यस यस।